Hello students, welcome to lecture number 3 of oxygen family. So today we are going to discuss about dioxygen, its preparation, properties and uses. After that we will be taking up the oxides, classification of oxides. So let us begin with dioxygen, that is oxygen gas or dioxygen O2. So its methods of preparation. Dioxygen can be prepared by a number of methods. So first of all we will be discussing about laboratory method of preparation. The first method is by thermal decomposition of oxygen rich compounds. The compounds which are rich in oxygen, they are subjected to heat. When they dissociate to give you dioxygen, for example, the compounds are your potassium chlorate. If this is heated, it will give you 2KCl plus 3O2 gas. Similarly, if you heat potassium nitrate, it will give you potassium nitrite, KNO2 plus O2. If you heat potassium permanganate, KMnO4, you heat it, you will get K2MnO4 plus MnO2 plus O2. So such oxygen rich compounds which are rich in oxygen, when they are subjected to heat, strong heat, they decompose to give you the dioxygen. The next method of preparation for this is that your heavy metal oxides, by thermal decomposition of heavy metal oxides, जो आपके ऐसे metals हैं which lie below in electrochemical series, जो आपकी electrochemical series में नीचे की तरफ lie करते हैं, they are less electropositive than hydrogen, heavy metal oxides. If these oxides are subjected to heat, then they also decompose to give you dioxygen. For example, silver oxide, if you heat it, you will get silver plus oxygen gas. Similarly, if you heat mercuric oxide, HgO, it will give you 2Hg plus O2. So heavy metal oxides can also give you dioxygen on heating. This is the second method of preparation. Third method is higher oxides of certain metals. Higher oxides of certain metals on heating also give dioxygen. For example, if you heat lead dioxide, PbO2, you subject it to heat, then you will get 2PbO plus O2. Your PbO2 will get reduced to PbO and oxygen. Similarly, you can also carry out this reaction with, if you wish to, with iron oxide, Fe3O4 के साथ भी कर सकते हैं आप ये reaction. So you can prepare dioxygen by this method. Metal peroxides or H2O2 that also undergo decomposition. Hydrogen peroxide decomposes easily in presence of
in presence of metal, that is rough surface of metal. If I am writing metal, it means it is the rough surface of metal. And you can say certain other decomposing reagents. For example, your MnO2, etc. You can heat it in presence of this, then it will decompose to give you water plus dioxygen. You will get 2H2O plus O2. So this is laboratory method of preparation of oxygen. अगर हम ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं ऑन द लार्ज स्केल और यू कैन से इंडस्ट्रियल स्केल, then there are two methods by which we can manufacture dioxygen. The first one is by electrolysis of water. By electrolysis of water. आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से बना सकते हैं डाइऑक्सीजन को, पर्टिकुलरली इन दोज कंट्रीज वेयर योर इलेक्ट्रिसिटी इज चीप. जहाँ पे बिजली सस्ती है वहाँ पे बनाते हैं हम इसको. तो अगर वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे टू गिव यू oxygen, electrolysis means you have to pass the electric current through this solution, then you will get 4H2O. Sorry, we will be balancing it H2O plus O2. You balance it to give H2 plus O2. H2 plus O2. So if you take 2, then it is 2 hydrogen gas plus O2. I have wrongly written this as 2O2. So it is H2 gas plus O2. इलेक्ट्रोलिसिस करने पे आपकी जो ये है ये निकलेगी कैथोड पे और ऑक्सीजन निकलेगी आपकी एनोड पे. दिस इज वन ऑफ द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन. द सेकेंड मेथड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन इज by fractional distillation. By fractional distillation of air, that is liquid air. अगर आप लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, कैसे करें? फर्स्ट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. आप एयर को, जो आपकी एयर है, यू विल बी पासिंग दैट थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ KOH और NaOH. व्हेन योर कार्बन डाइऑक्साइड विल डिजोल्व इन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ नेक्स्ट, दिस गैस is, or you can say air free from carbon dioxide is then passed through some dehydrating agent like anhydrous calcium chloride. If you will pass it through the dehydrating agent, your moisture will be removed. So now your air will be completely free from carbon dioxide and moisture. And it will mainly contain nitrogen and oxygen. और इसमें ज़्यादातर क्या होगी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगी. Because all other gases, they are present in traces amount and they are not much distilled over when we subject this to distillation. जब हम distillation करेंगे तो your nitrogen being the more volatile component of this mixture, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होता है, तो आपकी नाइट्रोजन जो है that will get distill off, वो बाहर निकल जाएगी डिस्टिल होके, और leaving behind oxygen in the container. So you will be getting the oxygen in that case. So this is manufacture of dioxygen. Now let us discuss the properties. So first of all we will be discussing the
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, जो हमारी डाइऑक्सीजन है, इट इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस. ये हमारी कलरलेस गैस है, टेस्टलेस गैस है, ऑर्डरलेस है. इट इज सोल्यूबल इन वाटर टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट. सोल्यूबल इन वाटर टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट. इसकी सॉल्युबिलिटी जो है पानी में वो बहुत कम है. लगभग ये मान लीजिए 3.06 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर और पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. सो इट्स solubility in water is very very low, but this solubility is sufficient to sustain aquatic life. मतलब जो आपके पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए इतनी ऑक्सीजन काफ़ी है. सो द aquatic life can sustain even at this temperature. Third one is boiling point of oxygen. Boiling point of dioxygen is 90 Kelvin and melting point is 55 Kelvin. ये 55 केल्विन है. जो चौथी प्रॉपर्टी बताई वो आपको 11th में भी पढ़ाई गई थी बॉन्डिंग के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में. इट इज पैरामैग्नेटिक. इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इट इज स्लाइटली हैवियर देन एयर. स्लाइटली हैवियर देन एयर. स्लाइटली हैवियर देन एयर. एयर से हल्की सी भारी है ये. डाइऑक्सीजन की जो वेपर डेंसिटी है दैट इज 16, while that of vapor density of air, that is dry air, it is 14.4. So it is a bit heavier than dioxygen. Now let us come to chemical properties of dioxygen. So chemical properties. In chemical properties, the first property is that your dioxygen, it is not combustible. It is not combustible. ये जलती नहीं है, but is a supporter of combustion. लेकिन कंबस्चन को सपोर्ट करती है ये. इट इज ए सपोर्टर ऑफ कंबस्चन. अगर आप देखना चाहें कि ये वास्तव में कंबस्चन की सपोर्टर है तो आप क्या कर सकते हैं, एक माचिस की तिल्ली जलाइए और उसको बुझा दीजिए. तो उसके आगे थोड़ी सी देर तक आप देखते हैं कि आग थोड़ी सी ग्लो रहता है. उस तिल्ली को उस अवस्था के अंदर अगर आप ऑक्सीजन की सिलेंडर में डाल देंगे, इट विल जस्ट ब्रस्ट इनटू फायर. एकदम से आग लग जाएगी उसमें. तो ये खुद नहीं जलती, लेकिन इट इज ए सपोर्टर ऑफ कंबस्चन. दूसरा जो है, इट इज न्यूट्रल. इट इज न्यूट्रल टू लिटमस. न्यूट्रल टू लिटमस. ये लिटमस के प्रति न्यूट्रल है. मतलब नाइदर इट इज एसिडिक नॉर इट इज बेसिक. इट विल नॉट टर्न द कलर. तो ये ध्यान रखना है. तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्टिविटी. अगर हम डाइऑक्सीजन की बात करें, देन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस डाइऑक्सीजन इज नॉट मच रिएक्टिव. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है अगर हम रूम कंडीशंस की बात करें. वाई इट इज नॉट मच रिएक्टिव? बिकॉज ऑफ
हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है, इट हैज़ ए वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट योर ऑक्सीजन ऑर्डिनरली डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर्स पर रिएक्शन शो नहीं करती है। हाउएवर एट एलिवेटेड टेम्परेचर और यू कैन से एट हायर टेम्परेचर इट इज क्वाइट रिएक्टिव। हायर टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद metals first. So next property, that is the fourth one, is reaction with metals. Reaction with metals. जो आपकी डाई ऑक्सीजन है, इट रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स। हर मेटल के साथ रिएक्ट कर जाती है एलिवेटेड टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट your noble metal like your gold, platinum etc. इनके साथ रिएक्ट नहीं करती। जो आपकी नोबल मेटल है इनके साथ रिएक्ट नहीं करती ऑक्सीजन, बाकी सबके साथ, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करती है। अगर आप डिफरेंट मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन लिखिए, आई एम राइटिंग ए फ्यू वन। जैसे अगर आप कैल्शियम को हीट करें इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, it will be forming calcium oxide. If you burn magnesium in oxygen, it will form magnesium oxide. इसका एक्सपेरिमेंट आपको 10th में कराया भी होगा। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करें एयर में, देन इट स्टार्ट बर्निंग विद ए वेरी ब्राइट लाइट, और जो पीछे कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका फिर आपको टेस्ट भी कराते हैं 10th में, दैट इट इज बेसिक इन नेचर। इसी तरीके से एल्युमिनियम आल्सो बर्न इन ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3. So you can also write certain other reaction. जो हमारी अल्कली मेटल्स हैं वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, जैसे आपका सोडियम मेटल की अगर हम बात करें, सोडियम मेटल को अगर हम जलाएं ऑक्सीजन में या हीट करें ऑक्सीजन के साथ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, देन इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो ये आपको सोडियम ऑक्साइड देगा। लेकिन अगर हम सोडियम को हीट करें ऑक्सीजन के साथ at a temperature of 570 Kelvin, then you will get sodium peroxide. तो कुछ केसेस के अंदर ये peroxide भी बनाती है मेटल्स के साथ रिएक्ट करके at elevated temperatures। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इट विल बी फॉर्मिंग peroxide आल्सो। जो आपका आयरन है दैट आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म your Fe2O3। तो ये आपकी मेन रिएक्शन है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दैट इज मेटल्स। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, आपकी जो डाई ऑक्सीजन है that also react with most of the non metals except noble gases, except noble gases। noble gases के साथ ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती, बाकी सब गैसेस के साथ लगभग सब नॉन मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करती है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर में से इलेक्ट्रिक स्पार्क करें, देन इलेक्ट्रिक स्पार्क यू विल बी गेटिंग वाटर लिक्विड, 2H2O लिक्विड। तो वाटर विल बी फॉर्म्ड। अगर आप कार्बन को हीट करें इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर अगर आप इसको हीट करेंगे, यू विल बी गेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस।
and if you heat the carbon in excess of oxygen or air, you will be getting the carbon dioxide gas. जो डाई नाइट्रोजन है N2 गैस, that react with dioxygen but at a very high temperature of approximately 3300 Kelvin, and it will give you नाइट्रिक ऑक्साइड गैस. ये आपको क्या देगी? नाइट्रिक ऑक्साइड देगी. जो सल्फर है दैट आल्सो बर्न इन ऑक्सीजन, इट गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन. In excess of oxygen, it will be giving you sulfur trioxide. Similarly, phosphorus will also react with oxygen to form two types of oxide, that is P4O6 and P4O10, trioxide or pentaoxides. So your non-metals are also going to react with oxygen to give various compounds. Although एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आपकी ये डाइऑक्सीजन है that combine with halogens to form compounds जैसे OF2, O2F2, ClO2 एक्सेट्रा, इनके साथ कंबाइन करती है ये, लेकिन कभी भी डायरेक्ट कंबाइन नहीं करती. ये कभी भी डायरेक्ट कंबाइन नहीं करती. इनडायरेक्टली यू कैन कंबाइन हेलोजेंस विद ऑक्सीजन. अब आ जाइए नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्साइड NO. अगर आप डाइऑक्सीजन गैस को रिएक्ट कराएं NO2 गैस के साथ, यू विल गेट 2NO2 गैस. दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन परऑक्साइड, वट एवर यू वांट टू से. वी वर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ. डाइऑक्सीजन रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस in presence of your catalyst vanadium pentaoxide to give you SO3 gas. Remember that this reaction is used in manufacture of your sulfuric acid. Next reaction is reaction with ammonia. Reaction with ammonia. Your dioxygen gas, when allowed to react with ammonia, produces nitric oxide in presence of platinum as a catalyst. Temperature is your 1070 Kelvin. हीटेड प्लेटिनम के ऊपर से अगर हम पास करेंगे इसको मिक्सचर को, you will get 4NO plus 6H2O. So this is the reaction with ammonia. The next reaction is reaction with hydrochloric acid. Reaction with hydrochloric acid, HCl. This is your Deccan's process for manufacture of chlorine. For manufacture of chlorine. गैस. इसमें क्या होता है कि अगर हम HCl और आपके डाई ऑक्सीजन के मिक्सचर को पास करें ओवर प्यूमिक स्टोन soaked in cupric chloride, heated to about 670 to 720 Kelvin, you will be getting H2O plus Cl2. अगर बैलेंस करें इसको हम तो 4 लगा दें तो 2H2O हो जाएगा और 2Cl2 हो जाएगी. सो दिस इज द Deccan's process of preparing dichlorine, or you can say chlorine gas, by means of reaction with your HCl gas. HCl की ऑक्सीडेशन होती है इसमें. नेक्स्ट इज
reaction with hydrocarbons, reaction with hydrocarbons. All your hydrocarbons, they burn in an atmosphere of oxygen, producing your carbon dioxide and water along with a huge amount of energy, along with a huge amount of energy. For example, मीथेन है, आप इसको ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, you will be getting carbon dioxide gas plus your water liquid, 2 ऑक्सीजन, और साथ में इसके निकलेगी बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट. सो दीज ऑल आर वेरी गुड फ्यूल्स. इसी तरीके से अगर आप C6H6 बेंजीन है, जलाइए आप इसको, 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो 3 ऑक्सीजन एंड 12, 15/2, तो 2 से गुना कर दीजिए इस सारी रिएक्शन को. 15, here it is 12 carbon dioxide and here it is 6 water molecules. Of course, along with a huge amount of heat, that is energy, will be produced in this. All hydrocarbons, they will burn in this way along with the evolution of heat, and they all are very good fuels. अच्छे fuels हैं सबके सब जितने भी आपके hydrocarbons हैं. Next is, if we allow or if we pass a silent electric discharge through a dry oxygen, then your dioxygen changes to ozone, a part of it, reaction in presence of a silent electric spark. What does it mean by a silent electric spark? Silent electric spark means that no heat is being produced. जैसे 3O2 गैस, इसमें से अगर आप पास कर दें साइलेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क, then a part of this dioxygen, I am saying a part of this, not whole of the oxygen, it will get converted to ओजोन गैस. ये सारी नहीं कन्वर्ट होगी, ए पार्ट ऑफ दिस विल बी ओनली कन्वर्टेड, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस डाइऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू योर ओजोन गैस. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ डाइऑक्सीजन. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, दैट इज यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन. आई एम राइटिंग ए फ्यू यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन ओवर हेयर. बाकी आप जो है बुक्स में से इनको याद कर सकते हैं जितने भी हों. जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं कुछ यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन. द फर्स्ट वन इज इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. In case of patients suffering from hypoxia, hypoxia means deficiency of oxygen, और ये आज की डेट में जितने भी कोविड-19 से डेथ हो रही हैं वो हिपोक्सिया की वजह से ही होती हैं. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, लंग्स को चोक कर देता है कोविड-19. अगर लंग्स इन्फेक्ट हो जाए तो उस केस के अंदर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे तो उसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. हम जो शुगर जो मतलब हार्ट पेशेंट्स हैं उनको भी क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो हम उनको भी देते हैं. ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो ऐसे पेशेंट को भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज़ वन ऑफ द मेजर यूजेस इन मेडिकल साइंस. सेकेंड वन इज as an oxidizing agent. आपकी जो डाइऑक्सीजन है, it is used as an oxidizing agent in a number of industrial process. For example, we just discussed in the chemical reactions of dioxygen, that is the reaction with NO, reaction with sulfur dioxide for manufacture
ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, प्लेटिनम एंड या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर होती है ये रिएक्शन। तो ऐसे सब जगहों पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह आप यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन को। तीसरा जो इसका यूज है दैट इज इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं उनके अंदर क्या होता है कि कुछ हमारी इंप्योरिटीज होती हैं, दे आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बाय द डाई ऑक्सीजन इनटू देयर वोलाटाइल ऑक्साइड्स एंड दे आर देन रिमूव्ड। जैसे आर्सेनिक वगैरह की इंप्योरिटीज हो तो दे आर कन्वर्टेड इनटू आर्सेनिक ऑक्साइड, वोलाटाइल है, बाहर निकल जाएगा। तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर हम यूज कर सकते हैं इसको, डाई ऑक्सीजन को। और जो आपके माउंटेनियर्स हैं, डीप सी डाइवर्स हैं, वो भी आपको ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को यूज करते हैं। सो दीज आर ए फ्यू यूजेस ऑफ डाई ऑक्सीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर और ऑक्सीजन हो, और मतलब यूजेस हैं तो आप पढ़ सकते हैं बुक से। आई हैव मेंशन्ड ए फ्यू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर बाइनरी ऑक्साइड्स। What are oxides? Binary oxides, binary compounds of dioxygen, binary compounds of dioxygen or oxygen with other elements. उनको हम बोलते हैं बाइनरी ऑक्साइड्स। जैसे कैल्शियम को आपने ऑक्सीजन में बर्न किया, आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, सो इट इज एन ऑक्साइड, क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बाइनरी ऑक्साइड्स। हमारे जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ऑल ऑक्साइड्स they can be classified into following categories. First one is acidic oxide, second one are basic oxides, third one is amphoteric oxides, fourth one are न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं हमारे। जो हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, दे आर जनरली द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। एसिडिक ऑक्साइड जो हैं दे आर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं नेचर में। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एक्सेट्रा, टू नेम ए फ्यू। ये एसिडिक ऑक्साइड है। कैसे पता लगेगा? व्हेन दीज ऑक्साइड्स विल बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, इनको जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे, दे विल बी गिविंग यू एन एसिड, ये आपको एसिड देंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम डिजोल्व कर दें वाटर में, यू विल गेट कार्बोनिक एसिड H2CO3। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें, यू विल बी गेटिंग सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। इनके अलावा, नॉन मेटल्स के अलावा, सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स आल्सो बिहेव एज एसिडिक ऑक्साइड, particularly in
higher oxidation state, particularly in higher oxidation state. For example, Mn2O7, ये मेटल का ऑक्साइड है बट इट इज एसिडिक इन नेचर, ये आपका उसके अलावा भी एसिडिक है। ये जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं दे विल रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगी विच इज ए बेस, इट विल फॉर्म Na2CO3 प्लस H2। सिमिलरली SO2 है, KOH के साथ रिएक्ट कराइए, इट विल फॉर्म पोटाशियम सल्फाइड प्लस योर H2O, लाइक दैट। तो जितने भी आपके एसिडिक ऑक्साइड हैं दे विल बी रिएक्टिंग विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। दूसरे टाइप के हमारे ऑक्साइड्स हैं, दे आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं ये वो ऑक्साइड्स हैं विच व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस बेसिक सॉल्यूशन और विच प्रोड्यूसेस बेसिस इन सॉल्यूशन व्हेन डिजोल्व्ड विद वाटर। जनरली जो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स मेनली। फॉर एग्जांपल Na2O है, आप इसको वाटर में डिजोल्व कीजिए, इट विल गिव यू 2 NaOH। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, डिजोल्व इट इन वाटर, इट विल गिव यू MgOH होल ट्वाइस। ये आपके बेसिक ऑक्साइड्स हैं। ये जितने भी बेसिक ऑक्साइड्स हैं दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। For example, this, if it is allowed to react with HCl, they will form 2 NaCl plus H2O। तो ये सब के सब जो हैं आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। तीसरे टाइप के ऑक्साइड जो होते हैं दे आर जनरली द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं ये जैसे कि आपको 11th में बताया था एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, विच कैन बिहेव बोथ लाइक एन एसिड एज वेल एज ए बेस। सो दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाई borderline elements between metals and non metals। मेटल और नॉन मेटल के जो आपके बॉर्डरलाइन केसेस हैं वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे, और पर्टिकुलरली जो आपके मेटेलिक करेक्टर की तरफ ज़्यादा होंगे बजाय नॉन मेटेलिक करेक्टर के। हमारे पास मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स जिनको आप कहते हैं, मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स, जो ना पूरी तरह से मेटेलिक है ना पूरी तरह से नॉन मेटेलिक है, वो जनरली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और वो भी कौन से एलिमेंट जो मेटल से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो नेम ए फ्यू एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर Al2O3, ZnO, BeO एक्सेट्रा। ये सब के सब आपके जो हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। अगर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं तो नेचुरल सी बात है दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज द बेस। अगर हम Al2O3 को रिएक्ट करवाएं HCl के साथ, इट विल फॉर्म एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस 3H2O plus 3H2O. So this reaction is showing basic character of aluminium oxide. This reaction is exhibiting the basic character of aluminium oxide. Al2O3 plus NaOH, it will form
Al2O3 प्लस योर वाटर, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा और आपका वाटर भी बनेगा। कुछ किताबों के अंदर इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा गया है, और Al2O3, मैंने बैलेंस नहीं किया वो इक्वेशन, बैलेंस हम कर सकते हैं। NaOH प्लस वाटर, Na3AlOH6 बैलेंस कर सकते हैं। दिस इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो 2 NaOH लग गए, 3 और 2 5 ऑक्सीजन चाहिए। हाइड्रोजन कितनी है इसके अंदर, 2 दूनी 4 और 1 5 हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। ये ऊपर वाली इक्वेशन मैंने बैलेंस कर दी है। इसी तरीके से आप नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सो दिस रिएक्शन इज शोइंग एसिडिक करेक्टर ऑफ योर एल्मुना और एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी तरीके से जिंक जब रिएक्ट करेगा तो आपका जब ये बेस की तरह काम करेगा, जिंक ZnO प्लस 2HCl, इट विल गिव यू ZnCl2 प्लस H2O। ये आपका हो गया बेसिक करेक्टर। और जब ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ Na2 ZnO2 प्लस H2O, ये आपका कहलाता है सोडियम जिंकेट। इसका मैंने नाम बताया था सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। So this is the basic character of zinc oxide, this is the acidic character of zinc oxide. So these are the amphoteric oxide. The fourth type of oxides are neutral oxide. Some of the elements also form oxides which are neutral in nature, that is they are neither acidic nor basic, so they do not react with acid or base. Some example of neutral oxides are N2O, NO, CO, H2O, etc. ये सब के सब न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। दे नाइदर एक्ट एज ए एसिड नॉर एक्ट एज ए बेस। तो ये 4 तरह के ऑक्साइड हैं आपके। आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हेयर फॉर दिस प्रेजेंट लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टेकिंग अप एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर एंड कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, जिसमें एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड। इन द नेक्स्ट lecture we will be taking up that. Thank you very much.